Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus, once again I Muhammad Arslan Shafiq welcome you all in F6 online sport program. In this video we will discuss problem number 4 to 8 of algorithms. Problem number 4, and that is find the volume of a cube. First of all, we see that how to find the volume of anything in simple mathematics, and the formula of the volume is that volume is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. And the what is cube? Cube diagram which has equal sides, which has equal sides. It's mean that if one side is 2, then the other one is also 2 and the third one is also 2. तो वॉल्यूम जो है, अगर आपने उसका क्यूब का फार्मूला बनाना है वॉल्यूम का, तो वो आपके पास होगा, अगर आपके पास एक साइड आपके पास लेंथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. व्हाई? बिकॉज द ऑल थ्री साइड्स आर equal in simple mathematics. Now we see how we can find the volume of a cube in computer sciences in programming, or how we can write its algorithm. First of all, we plan the solution, and for this input length of the side of a cube. हमें सबसे पहले उसकी जो साइड ऑफ क्यूब है, एक साइड की उसकी लेंथ जो है वो इनपुट करवानी है. देन रिक्वायर्ड आउटपुट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, and the processing that we do to get our result is side of cube raised to the power of 3. आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स में L to raised to power 3 भी लिख सकते हैं. Now we write the algorithm of our problem. Step 1, start the program. Then let the length of one side of a cube L is equal to 12. ये हमने खुद से सपोज की है, ये जो लेंथ है ये हमने खुद से सपोज की है, लेट की है. ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है. स्टेप 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम V. हाउ वी कैलकुलेट? एज आई डिस्कस, V इज इक्वल टू L स्टेरिक L. कंप्यूटर साइंसेज में मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम जो है वो कोडिंग में स्टेरिक को यूज़ करते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि आपने जब भी मल्टीप्लाई करना है किसी भी दो टर्म्स को, देन वी यूज़ स्टेरिक ऑन द प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन. Step 3, output V. Well, now we have to output the volume that we calculate. Then step 4 is stop. Now we see problem number 5. Find the area of a triangle when the lengths of height and base are given. हाइट और बेस आपको गिवन है ट्राइंगल की, और आपने फाइंड आउट करना है एरिया. तो सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह हम मैथमेटिक्स में देखेंगे एरिया कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला क्या है किसी भी ट्राइंगल का, और वो आपके पास होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. This formula is in simple mathematics. Now we see it in computer sciences are coding planning the solution. Input height and base of a triangle. Required output is area of the triangle. And the processing that we apply is multiplying the height and the base and divided by 2. Processing वही फार्मूला आपके पास जो हमने थोड़ी देर पहले देखा एरिया फाइंड आउट करने का. Now we write the algorithm. Step 1 is start. Let the height h be 10. Again we are letting or supposing the height and base is 10 and 15. We can change it no matter it is 5 or 10 or 2 or 4, anything we suppose. Step 2 is calculate the area. एरिया कैलकुलेट करेंगे. स्टेप 3 स्टेप 2 में ही एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया का आपके पास फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2. ये जो ऊपर फार्मूला मैंने पहले डिस्कस किया आप लोगों से. स्टेप 3 आउटपुट ए, एंड स्टेप 4 हैव टू स्टॉप. प्रॉब्लम नंबर 6, रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम, एंड द स्कीम इज गिवन.
as here you can see marks are, if marks are greater than 80 or equal to 80 and less than 100 or equal to 100, then the grade is A1. If the marks are greater than or equal to 70 and less than or equal to 80, then the grade is A. If the marks are 60, greater than 60 or equal to 60 and less than 70, then the marks is B. Same as 50 to 60 or 40 to 50 and 33 to 40 is E, and less than 33 is ungraded. Now we see how to plan our solution. First of all, we input the marks from the user. Now required output is letter, that is grade. Processing, check in which range the marks fall and accordingly print the letter grade. ये आपके पास जो ये वाला एल्गोरिदम है और इसी का जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक्स हैं कंडीशंस की, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। एल्गोरिदम इसका करेंगे हम स्टार्ट। तो स्टेप 1 में आपके पास आ जाएगा स्टार्ट, लेट द मार्क्स बी एम। एम आपके पास यहाँ पे एज ए वेरिएबल यूज हुआ है और एम के अंदर आप वैल्यू स्टोर कराएंगे उस मार्क्स की, जो भी इनपुट हम मार्क्स कराएंगे वो आके स्टोर हो जाएंगे इस m के अंदर। और फिर हम इस m को चेक करेंगे कि क्या ये m जो है वो आपके पास 80 और 100 के दरमियान और 80 90 और 90 100 के दरमियान फॉल आउट करता है कि ये कहाँ पे करता है। तो सारे चेक जो है वो इस m के ऊपर आपके पास लगेंगे। स्टेप 2, कंपेयर द मार्क्स। If m is greater than or equal to 80, then print grade A1. अगर आपके पास मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा हो जाते हैं या 80 के इक्वल हो जाते हैं तो वो ग्रेड A1 को जो है वो प्रिंट करें। अब यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन नहीं लगाई कि मार्क्स जो है वो आपके पास लेस देन 100 ही होने चाहिए या इक्वल टू 100 होने चाहिए, बिकॉज आमतौर पे जब आप मार्क्स लेते हैं तो आउट ऑफ मार्क्स हम इस तरह लिखते हैं आउट ऑफ 100। तो जब वो आउट ऑफ 100 में आते हैं तो वो 100 से ज़्यादा कभी भी आपके पास मार्क्स नहीं हो सकते। 101 आउट ऑफ 100 नहीं हो सकता। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे मार्क्स जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 80 जो है वो चेक कर रहे हैं, वो हमेशा लेस देन, और ये हमेशा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 ही रहेंगे आपके पास। अदरवाइज इफ दिस कंडीशन इज रॉन्ग, this condition is wrong, then which condition is followed, otherwise go to step 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि ये जो स्टेप 4 है ये किस तरह जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमने स्टेप 4 तो लिखा नहीं, तो स्टेप 4 लिखने से पहले ही हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये हमें अब इसके बाद स्टेप 4 पे जाना है या स्टेप 5 पे जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लास्ट पे हमेशा एल्गोरिदम के लिखी जाती हैं। जब आप पूरा एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमें किस स्टेप पे जाना चाहिए और उसके बाद हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 3, गो टू स्टेप 13। अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं और वहाँ पे ये प्रिंट हो जाता है ग्रेड A1, तो वो फौरी तौर के ऊपर आपके पास चला जाएगा स्टेप नंबर 13 पे। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेप 3 में क्या होगा, गो टू स्टेप 13। और स्टेप 13 हमें कैसे पता चला स्टेप 13 में जाना है, हम लास्ट में सबसे लास्ट में लिखते हैं कि किस किस स्टेप में जाना है। तो स्टेप 3 में आपके पास आ जाएगा जी गो टू स्टेप 13। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज रॉन्ग देन गो टू स्टेप 4। एंड व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 इज कंपेयर द मार्क्स। अगेन वी हैव टू कंपेयर द मार्क्स। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन प्रिंट ग्रेड A। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि इधर तो था कि वो मार्क्स कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 80 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, तो देन वाई हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन नहीं लगाई कि वो लेस देन 80 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक ही ये किया है कि मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन रॉन्ग है कि मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर ही अगर ये कंडीशन आपके पास रॉन्ग हो जाती है तो फिर वो जो है वो आगे आपके पास आएगा स्टेप 4 पे। तो इट्स मीन डैट के स्टेप 2 में हमने चेक कर लिया था कि मार्क्स जो है वो हमारे पास 80 से ज़्यादा नहीं है, कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो इस वजह से वो स्टेप 4 पे आया। तो अगर मार्क्स आपके पास
जो है वो 80 से ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली इट वुड बी लेस देन 80, and we have to check if it is greater than or equal to 70, then print grade A, otherwise go to step 6. If the condition is right, then we follow 5, that is go to step 13, and if the condition is wrong, then go to step 6. And what is step 6? Step 6 is compare the marks. If marks is greater than or equal to 60, then print grade B. Here यहाँ पे हम दोबारा से कह सकते हैं कि 70 इसलिए नहीं चेक किया कि 70 ऑलरेडी स्टेप 4 में हम चेक कर चुके हैं कि अगर मार्क्स आपके पास 70 से ज़्यादा होते हैं तो वो उसी स्टेप पे उसी स्टेप पे आपके पास वो स्टॉप हो जाता, वो स्टेप 6 पे नहीं आता। वहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हुई, इस वजह से वो स्टेप 6 पे आया, तो इट्स मीन दैट कि हमने वो चेक कर लिया कि मार्क्स आपका 70 से ज़्यादा नहीं थे। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मार्क्स जो है वो greater than or equal to 60 है। That if the marks are greater than or equal to 60, then print grade B, otherwise go to step 8. If the condition is true, then follow step 7, and step 7 is go to step 13, and if the condition is wrong, then follow step 8. And what is step 8? Compare the marks. Again compare the marks. If marks are greater than or equal to 50, then print grade C, otherwise go to step 10. If the condition is true, then go to step 13, and if the condition is wrong, then go to step 10, and the step 10 is compare the marks. If marks is greater than or equal to 40, then print grade D. Again we check that for the marks, if the marks is greater than or equal to 40, then print grade D, otherwise go to step 12, and the step 11 is go to step 13. If the condition is true, it follows step 11, and if the condition is wrong, it follow step 12, and the step 12 is again compare the marks. If marks is greater than or equal to 33, then print grade E, otherwise print ungraded. If the condition is true, it follow step 13, or if the condition is false, it also follow step 13, बिकॉज यहाँ पे आपके पास तमाम की तमाम जो कंडीशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सारी कंडीशंस हमने लगा दी, तो इसके बाद ये एल्स आपके पास चला है कि अब ये हमारी कंडीशंस ख़त्म हो गई हैं, तो फिर भी अब ये सारी कंडीशंस ख़त्म हो गई तो प्रिंट जो है वो कर देगा अनग्रेडेड, और हमारे पास यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। हमने यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं की, इट्स मीन दैट के इस वाली लाइन के बाद स्टेप 13 ही फॉलो होगा। और अगर कहीं पे पीछे स्टेप 7 में और स्टेप 5 में और स्टेप 9 में अभी से पीछे वाले जो स्टेप्स हैं वहाँ पे गो टू वाला जो है वो आपके पास यूज हो जाता है, तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो जंप करके आपके पास स्टेप नंबर 13 में आएगा और वो स्टॉप कर देगा, स्टेप नंबर 12 को वो रन नहीं करेगा, और दरमियान वाले जितने भी स्टेप्स हैं सबको स्किप करते वो किसी को भी रन जो दरमियान में नहीं करेगा। अब सी प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अगेन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या है। आपके पास एक्सपोनेंट्स मींस दैट पावर। आपने जब किसी भी नंबर की पावर जो है वो उसको फाइंड आउट करना है तो मैथमेटिक्स में हम उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और पावर हम लोग क्या चीज़ होती है, सपोज दैट अगर मैथमेटिक्स में आप देखते हैं तो 2 की पावर आपके पास 5 हो सकती है, तो इट्स मीन दैट 2 रेज़ टू पावर 5 मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। It's mean that के 5 times we multiply the same number 2, and it's mean that it is power 5 of the number 2. We have to find the power of a number or exponent of a given number. Let's start planning the solution. Input a number and its exponent. Required output is exponent of a given number, and for processing we multiply the number as many times as its exponent, or we can say it power. Now start writing algorithm. Step 1 is start. Let the number n be 8,
एंड इट्स एक्सपोनेंट बी 5। अगेन हम यहाँ पे किसी भी नंबर को सपोज कर सकते हैं, नो मैटर इट इज 8 और नो मैटर इट इज 5, वी कैन से हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं 2 और इधर पावर हम जो है वो 3 भी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी हम सपोज करना चाहें। स्टेप 2, इनिशियलाइज प्रोडक्ट एंड के इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक नई चीज़ हमने जो है वो सीखनी है, लूपिंग करना। हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लूपिंग कहते हैं, लूप कहते हैं। और ये जो लूप है ये एक ही काम को बार बार करवाने के लिए हम कंप्यूटर साइंसेज में यूज़ करते हैं, और इसको कोडिंग में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो स्टडी करेंगे। हम इसको नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। इनिशियलाइज प्रोडक्ट, इनिशियलाइज मीन दैट व्हाट इज इनिशियलाइजेशन। हम जब भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी वर्ड जो है उसको डिक्लेयर करते हैं कंप्यूटर साइंसेज में, ये भी हम आगे जो है वो फर्दर अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। कोई भी हम जब नंबर जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज जो है वो डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि आपने उसको एक वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल में उसके अंदर गार्बेज जो है वो आपके पास पड़ा होता है, मींस डैट कोई भी रॉ डाटा पड़ा होता है, तो हमें सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो एज इनिशियलाइज मीन डैट कि उसको हमें एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना, हम पी की फर्स्ट टाइम जो वैल्यू जो है वो उसको 1 जो है वो इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो प्रोडक्ट P जो है वो हमने इनिशियलाइज कराया एज 1 एंड K जो है वो हमने लूप करना है, काउंटर ये हम यूज करते हैं एज अ काउंटर कि ये काउंट करेगा। बिल्कुल जिस तरह आपने वो देखा हो, आपके पास तस्बीह होती है काउंट करने वाली, बटन दबाते हैं तो काउंट करते हैं, तो हमने 8 नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली ये जो K है ये काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो कंडीशन हमारे पास K में आ जाएगी, और जिसको मल्टीप्लाई करना है वो आपके पास n नंबर था जिसको हमने मल्टीप्लाई करना था, उसको हम उतनी दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। As you see, we initialize P is equal to 1, K is equal to 1. Find the product. अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट? P is equal to P steric n. P is equal to P steric n. अभी इसमें देखें आपके पास ये किस तरह फाइंड आउट करेगा। P is equal to P. P में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? फर्स्ट टाइम में P में आपके पास 1 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय n। n नंबर में आपके पास देखें क्या पड़ा हुआ था, n नंबर में आपके पास 8 जो है वो पड़ा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो वो जो p था, इस p की फर्स्ट वैल्यू जो थी वो आपके पास 1 थी जो ख़त्म हो गई। अब उसके अंदर नई वैल्यू आ गई, वो है 8। तो p के अंदर अब जो नई वैल्यू है वो आपके पास है 8। इंक्रीमेंट k बाई 1, तो k में भी आप देखें तो k में आपके पास सबसे पहले जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपके पास पड़ी हुई थी 1। अब कह रहे हैं जी इंक्रीमेंट k बाई 1, इट्स मीन डैट के 1 के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दें, एक उसके अंदर ऐड कर दें, तो नई वैल्यू आपके पास हो जाएगी उसकी 2। भी ये हमने किस लिए यूज़ किया, ये हम काउंट कर रहे हैं कि 1 टाइम्स हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी दफ़ा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम काउंट कर रहे हैं। तो k की वैल्यू बेसिकली आपके पास काउंटर है, काउंट कर रहा है। k इज इक्वल टू k प्लस 1, इट्स मीन डैट k इज इक्वल टू k प्लस 1। ये किस तरह ऐड करता है, k इज इक्वल टू k के अंदर देखें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी 1 प्लस 1, और ये आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 के। Check if the value of k is less than or equal to e. Now we have to find and check the condition that if the value of the k is less than or equal to a. तो k में आपके पास जो वैल्यू देखें पड़ी हुई थी वो 2, और e के अंदर जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है वो आपके पास है 5। तो e के अंदर जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई थी वो है आपके पास 5। नाउ वी चेक, k के अंदर आपके पास 2 वैल्यू थी, e के अंदर आपके पास 5 थी, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, इट्स मीन दैट k इज ट्रू।
अगर तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है तो कहता है इफ k इज लेस देन और इक्वल टू e देन गो टू स्टेप 3 एंड व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट। अगेन फाइंड द प्रोडक्ट p इज इक्वल टू p स्टेरिक n। तो p के अंदर देखें आपके पास क्या पड़ी हुई नई वैल्यू थी हमारे पास, p के अंदर 8 थी, तो p के अंदर अब जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी p इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n। नंबर में आपके पास देखें क्या पड़ा हुआ, फिर से 8 पड़ा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। अब ये जो p के अंदर नई वैल्यू है ये 8 वाली वैल्यू खत्म हो गई, p के अंदर हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी 64। अब ये प्रोसेस आपका कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास ये जो कंडीशन है इफ k इज लेस देन और इक्वल टू ये रॉन्ग नहीं हो जाती। जैसे कि देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर से आप फिर से स्टेप 3 उसने सॉल्व किया, स्टेप 3 करने के बाद वो दोबारा से स्टेप 4 पे आएगा। स्टेप 4 कहता है k इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k में वैल्यू 2 पड़ी थी, k में वैल्यू आपके पास हो जाएगी k प्लस 1, 2 प्लस 1 3। अगेन चेक करेगा कंडीशन इफ k इज लेस देन और इक्वल टू e, k में आपके पास वैल्यू पड़ी है 3, e में आपके पास वैल्यू है 5, 3 इज लेस देन 5, तो अगेन वो वापस किधर आ जाएगा आपके पास स्टेप 3 पे, और दोबारा से आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। p के अंदर वैल्यू 64 पड़ी है, उसको दोबारा से मल्टीप्लाई वो करेगा 8 के साथ और फिर इंक्रीमेंट होगा, आपके पास जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, दोबारा से वो ऊपर जाएगा, p की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी। तो 5 टाइम्स ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद फिर जब ये दोबारा से इधर आएगा तो k की जो वैल्यू है वो जब आपके पास 6 हो जाएगी तो उसके बाद देखें इफ k इज लेस देन और इक्वल टू e, तो इट्स मीन दैट के कंडीशन जो है वो आपके पास यहाँ पे ये गलत हो गई, और जैसे ही कंडीशन हो गलत होगी वो बोलेगा जी आपके पास गो टू स्टेप 6। तो स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, फिर उसको आउटपुट करवा देते हैं, आउटपुट p जो प्रोडक्ट फाइनली हमने कैलकुलेट किया उसको हम आउटपुट करवाएंगे एंड फाइनली वी हैव टू स्टॉप इट। दिस इज कॉल्ड द लूप। एक ही टाइम में वो जो एक ही प्रोसेस को हम बार बार रन कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम लूप कहते हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोग्रामिंग में आगे हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको लूपिंग स्ट्रक्चर को और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में जब हम लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। तो ये भी स्टार्टिंग में जस्ट सम एल्गोरिदम्स हैं, तो ये चैप्टर आपके आगे आएंगे जिसमें हम इसको सारे को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now we see problem number 8, that is print odd numbers from 1 to 100, and the odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. All these are odd number. Odd numbers are those numbers which is not divisible by 2. Planning the solution, this problem has no input. Why this problem has no input? Because हमने यहाँ पे यूज़र से कुछ भी नहीं लेना या कोई नंबर हमने लेके उसको प्रोसेस नहीं करना, इसलिए यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, हमने प्रिंट आउट कराना है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11. Required output is printing all number from 1 to 100, and for this processing initialize a variable to 1. हम प्रोसेसिंग किस तरह करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे उसकी वैल्यू जो है 1 रख देंगे एंड कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 टिल 99. हम यहाँ पे लूप जो है वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए हम इंक्रीमेंट जो है वो 2 का करते हुए हम इसको जो है वो आउटपुट करवाएंगे और 99 नंबर तक हमने इसको लेके जाना है। अब हमें 2 का इंक्रीमेंट क्यों करवाना है, अब आप देखें 1 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आप 5 और 3 का डिफरेंस चेक कर लें, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आप 7 और 5 का डिफरेंस चेक कर लें, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। इट्स मीन डैट के हर दो नंबर्स के दरमियान 2 का डिफरेंस है। अब 9 और 11, 11 और 13, 13 एंड 15, 15 एंड 17, हर दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम 1 में 2 ऐड करते हैं तो आपके पास 3 आ जाएगा, एंड इफ वी ऐड 2 in 3 देन वी गॉट 5, एंड इफ वी ऐड 2 in 5 देन वी गॉट 7। एज
सेम हमने इसी तरह इस प्रोसेस को रन करना है, कब तक, जब तक हमारे पास वैल्यू 99 नहीं आ जाती, बिकॉज हमें ऑड नंबर्स जो है वो प्रिंट आउट कराने हैं, 100 प्रिंट आउट नहीं करवाना हम लोगों को, क्योंकि 100 जो है वो आपके पास एक इवन नंबर है। राइट द एल्गोरिदम, स्टेप 1 इज स्टार्ट इनिशियलाइज वेरिएबल k टू 1, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा k हम एज अ लूपिंग वेरिएबल यूज करते हैं, उसको हमने 1 जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया, k इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 आउटपुट k की वैल्यू जो है वो आउटपुट हो जाए, वैल्यू आउटपुट होने के बाद इंक्रीमेंट हो जाए 2 का, इंक्रीमेंट k बाय 2, k इज इक्वल टू k प्लस 2। अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले k की वैल्यू जो है वो आपके पास इज इक्वल टू 1 थी, हमने आउटपुट करा दिया स्क्रीन पे 1 को। फिर उसके बाद स्टेप 3 में हुआ इंक्रीमेंट k बाय 2, तो k के अंदर अगर आप 2 ऐड करते हैं, k प्लस 2 करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 3। चेक इफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 100, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंडीशन ये लगी है k की वैल्यू आपके पास लेस देन 100 होनी चाहिए, नॉट लेस देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पे आपके पास लेस देन के साथ इक्वल टू भी यूज करता तो इट्स मीन दैट के k की वैल्यू फिर वो इक्वल टू 100 के भी चेक करेगा। अब यहाँ पे वो इक्वल, ये 100 के इक्वल नहीं चेक करेगा, वो जस्ट चेक करेगा k की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए, इट्स मीन दैट k की वैल्यू, इसको, इस कंडीशन को हम अगर इक्वल की फॉर्म में लिखना चाहिए तो हम इस तरह लिख सकते हैं k इज लेस देन और इक्वल टू 99, लेस देन और इक्वल टू 99 तक चेक करेगा, और खाली लेस देन जो है वो 100 तक यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, 3 इज लेस देन 100, कंडीशन आपके पास शो हो गई। देन अगेन इफ k इज लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2, अगर आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप 2 पे ले जाएंगे, और स्टेप 2 से दोबारा से रन होगा, इंक्रीमेंट 2 का होगा, दोबारा से आउटपुट करने के बाद आउटपुट हुई आपके पास, स्टेप 2 रन हुआ, आउटपुट हुई 3, दोबारा से आपके पास जो है वो इंक्रीमेंट हुआ स्टेप 3 में, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 5। देन अगेन चेकिंग द वैल्यू, कंडीशन इज ट्रू, गो टू स्टेप 2, प्रिंट, देन अगेन adding 2 in the value of k and it is 7, then again print। तो ये प्रोसेस आपके पास अगेन एंड अगेन इसी तरह चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास इसकी वैल्यू 100 जो है वो नहीं हो जाती। तो जैसे ही 100 होगी ये चेक करेगा 100 इज लेस देन 100, तो 100 इज लेस देन 100 कभी भी नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये आपके पास ये जो कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो क्या करेगा, गो टू स्टेप 5 एंड द स्टेप 5 इज स्टॉप, आपके पास जो है वो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।